Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to JSMU COVID-19 webinar series. This is JSMU's webinar series to bring people together from within and outside the healthcare community to discuss issues pertinent to the well-being of all of us during the pandemic. तो हमारा जो फर्स्ट सेमिनार है इस सिलसिले में वेबिनार it is discussing the role of mass media in dissemination of information related to healthcare. So mass media's role in dissemination of information has always generated much interest and some concern among the healthcare community as scientific information is synthesized in a way that the common public can understand through the mass media, by the mass media. So today we've invited eminent journalists who are managing newsrooms and reporters and facing this situation of reporting the pandemic as it happens around the world and in Pakistan as well. So as healthcare community seeks to understand how media works in Pakistan, how healthcare issues are treated by the media, and how we can contribute to make information sharing more effective. So first of all, I'm going to welcome my guests, Mr. Azhar Abbas, the Managing Director of Geo News, and Kamal Siddiqui, Director of Center for Excellence in Journalism, IBA, is going to join us shortly, and Mr. Qasim Moini, the City Editor of Dawn newspaper, will also be joining us soon. सबसे पहले I'm going to invite our Honorable Vice Chancellor, Professor Saeed Mohammad Tariq Rafi, to share his views on the expectations of the healthcare community from the mass media. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you with the so prominent and eminent journalists that we have. I'm thankful to Azhar Abbas Saab, thankful to Kamal Siddiqui Saab and Qasim Moini Saab for taking their time out from the busy schedule to be here to a very important subject, and this is the role of mass media in this current situation of coronavirus that we have. We all are very familiar that mass media plays a very important role in third world countries like Pakistan, where unfortunately the literacy rate is very low. Because of the low literacy rate, the habit of people to read or to go through the books or to go through the newspapers and to read them is very low as compared to the West. And in addition to that, the changing environment has made the electronic media, especially the television and the other media, the social media, so much important for us, because there the people are talking and you have to listen. You don't have to have knowledge, or you don't need to have any education for that. And that is where the role of mass media comes, a very important role, a sensible role that they have to play. Because in this time when the information is coming from right, left, up and down, everywhere regarding this coronavirus, to filter this information for our public and to make them understand what is really true and what is there that is positive is very important. Unfortunately, what we see at times in different television channels, people are sitting and talking, or on what we see unfortunately more on the social media, on WhatsApp groups and others, the information that is coming is half cooked or sometimes totally negative. Wrong informations are portrayed as scientific informations. People believe in that, using certain medicines which are not recommended at all, doing certain acts to increase their immunity, taking certain food substances, but things which are there which need to be corrected. At the same time, when we see because आजकल तो घर पर बैठे तो कुछ करने को नहीं, तो सारा दिन चैनल ही चेंज करते रहते हैं. मुख्तलिफ चैनलों पर ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो कोरोना पे बातें कर रहे हैं, कोरोना के ऊपर अपनी राय दे रहे हैं, वो अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट द पीपल जिनको कोरोना के बारे में, मैं अगर बैठकर मास मीडिया के ऊपर लेक्चर दूंगा तो एज अ डॉक्टर आई एम नॉट द राइट पर्सन टू डू दैट. सिमिलरली अगर मैं पॉलिटिक्स पे लेक्चर देता हूँ तो आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन टू दैट. लेकिन कोरोना के ऊपर जो अगर आप ज़्यादा प्रोग्राम्स देखें तो या तो पॉलिटिशियन से टॉक शोज पे पूछा जा रहा है, डॉक्टर्स भी बुलाए जाते हैं, अच्छे चैनल जो हैं वो उन लोगों से राय देते हैं. लेकिन बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो कि आई थिंक उसके मिर्च मसाला लगाने की वजह से वो पॉलिटिशियंस को बुलाते हैं जो कोरोना पे अपनी राय देते हैं. अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट ओपिनियंस देते हैं, और वो ओपिनियन ऐसी होती है कि वो उनके अंदर उनकी अपनी पार्टी का जो होता है
वो मौक़िफ़ ज़्यादा होता है बजाय साइंटिफिक मौक़िफ़ के। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से मैं चाहूँगा कि मैं अज़हर अब्बास साहब से और अपने तमाम बाकी सामीन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस पर हमें बताएं कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। रीच आप कीजिए, अब 90% से ज़्यादा पाकिस्तानी पॉपुलेशन के पास है, और क्योंकि लोग आजकल घरों पर बंद हैं तो फॉर्चुनेटली ज़्यादा टीवी देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं ये तो नहीं कहूँगा, आई डोंट वांट टू गो इनटू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाय सेइंग कि जी सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया, लेकिन अब क्या ये चीज़ जो हुई है, क्या ये मेडिकली प्रूव है? सारी दुनिया जो है वो लॉकडाउन को सपोर्ट करती है और हम समझते हैं। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेंडेमिक? दैट इज अगेन अ थिंग टू बी टॉक्ड अबाउट। सो आई विल रिक्वेस्ट माय worthy panelists to give their opinion on this, and I'll be very happy to be a part of listen to all this. Thank you very much, Azhar sir. Thank you, Professor Tariq Rafi. And now I'm going to ask Mr. Azhar Abbas to present his point of view. You're on. Vice Chancellor Professor Tariq Rafi साहब, बहुत शुक्रिया आपका. To begin with, I would just like to say that in my over 30 years of journalism and like covering or managing coverage of wars and natural disasters and terrorism, not just in this city but in the country and the region, I have not seen people so scared, including journalists. And maybe it's because of the fear of the unknown, because they actually can't see the thing called coronavirus. When we were covering terrorism or natural disasters or even wars like in Afghanistan or Syria and Iraq, we kind of like can predict which areas to go to, which areas not to go to, the dangers. But now, when we send when I actually send my reporters or my staff outside in the field to cover, the biggest question is that they actually don't know. They say, I mean, like some of the closest persons they're working with or they're interacting with can be infected, and they can get infected also. So what we did was, and as you said, Professor Rafi, that so it's actually become it was a huge task for us. So what we did was that very early in March, we came up with a business continuity plan. We kind of, as compared to some other media organizations, we realized that this is not going to end in the 15 days or in a month or 2 months time. Our business continuity plan was divided mainly into two parts. One was strict safety SOPs, protocols. We made that, and actually then we shared those protocols and SOPs with other channels also and other media houses also, through our own association of editors and news directors. The second was obviously the business part of it, the operational part of it. How to make shifts, how to make people work from home, making it, actually it was not easy for people to stay at home also, but we made that plan and we actually implemented it very successfully, and it's still going on. So I'm not going to go into the detail of the plan, but yes, the biggest challenge in all this was actually, as you rightly pointed out, was countering misperceptions, providing credible information, especially in a time of digital and social media. There was so much information and misinformation, I would say, wrong information, different conspiracy theories and whatnot on. That was probably one of the biggest challenge that the mainstream media faced during this pandemic, and still facing. So that was, and the second challenge was
training our journalists, both in-house and those who are going out in the field to cover. We talk to a lot of doctors, experts, how to manage reporters and journalists. Being, being journalists, they always go on social media, do searches and come up with different theories. Why should we wear masks? Should we wear N95 or should we wear a normal surgical mask as you are wearing, Professor Tariq Rafi? Or, why should we wear gloves and why should we not wear gloves? If we take chloroquine, will it be okay and not? And, there's so much information and disinformation on the web that it became actually very difficult for us to tell our reporters, teach our reporters, cameramen, and not just them, our satellite engineers, our drivers. It's so difficult. I mean, there have been so many cases when people at times just refused. One, they refused to go out. Secondly, there are a type of people who used to say that nothing is going to happen, मौत तो आनी है, आ जाएगी अगर होगा तो क्या किस चीज से डरना। ये भी एक टाइप थी जिसको आपको डील करना था। और फिर ये दूसरे जो बहुत ही ओवर कॉशियस किस्म के लोग थे, उनसे भी आपको डील करना था। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। लेकिन आई वुड से that in all this, the mainstream media played a very good role in not just educating people, telling people what's going on, clearing the misconceptions, but also dealing with the government, pressurizing, promoting things on mainstream media that would put pressure on the government, which has kind of a lackluster attitude. If you remember, March or early April, our governments were not doing anything, except maybe, like the Sindh government, which was kind of proactive. Look at the federal government, look at what Punjab was doing. And when we used to promote, that Sindh is going for a tougher lockdown, there used to be, statements against us, even, some rival media houses saying things that we are, siding with the Sindh government or something like that. So it has been an uphill task. It still is. And as you said, well, for running a television channel or even a newspaper, I would say, थोड़ा बहुत म्यूजिक जो है वो भी जरूरी होती है लोगों को engage करने के लिए. So yes, a bit of like a political rivalry on television, contradictory statements, accusations and counter accusations, all that is also needed, a bit of it, to keep the momentum going. But if you remember that most channels actually stood behind our doctors, our paramedics, who were actually fighting. And in fact, I would say our journalists also have been in the forefront. They were going out every day. My reporters and cameramen and engineers, they've been out every day providing you guys information from the field, what's happening in the markets, what's happening in the hospital. I mean, our reporters have been in hospitals, which at this present time is probably the riskiest place to be. But we have been there and then digging out information because, to be honest, the governments have been hiding information. We have launched a campaign about a month back that why these governments are not increasing testing when they have the capacity. And that was a huge task for us to actually raise, and we got the slack for it. I think more overall, it's been a tough task. It's been a challenge. The biggest, as I said, was clearing the misconceptions and providing credible information. But yes, an area that we lacked, and we think that it has taught us, and maybe in future we can actually do a better job, is to train our health reporters, to properly train our staff, that in case of a pandemic, in case of any sort of epidemic, how to go out and how to perform, how to take care of themselves and provide, credible information.
information. That has been a learning for us. Thank you, Mr. Azhar Abbas. The other speakers are about to join. There are some technical problems, जिसकी वजह से हमारे दूसरे दो speakers अभी नहीं आ सकते. Second, yeah. So I think we'd like to know, आप जैसे credibility of information is important to you. So जब hard scientific facts होते हैं, तो उसका कोई तरीका होता है कि न्यूज़रूम के लेवल पर आप उसको वो करते हैं, वेट करते हैं या क्रॉस चेक करते हैं इंफॉर्मेशन एंड देन इट्स सेंट आउट? आसमा, देखिए हमने क्या किया था कि हमने एक कोर ग्रुप बनाया. आसमा कि हमने एक कोर ग्रुप बनाया अपना, और उस कोर ग्रुप के अंदर हमारे जो रिपोर्टर्स भी थे जो कवर कर रहे थे, इसके अलावा हमारे सीनियर एडिटर्स थे, और उनको टास्क ही ये था कि बेसिकली नॉट जस्ट सर्चिंग द इंटरनेट, not just looking at all the news that is coming from, let's say, Europe or China or the US and UK, but also talk to the doctors and experts. हमने कुछ डॉक्टर्स को, जैसे हमने PMA के साथ एक अलायंस टाइप का बनाया, और हमने कहा कि आप हमें उन क्रेडिबल तो नहीं कहना चाहिए, बट एक्सपर्ट्स जो हैं इस फील्ड के, वो आइडेंटिफाई करें. सो यस, वी वर कॉन्स्टेंटली इन टच विद देम. We used to verify information from them. We have made mistakes. Yes, maybe some of our reporters may have aired news that was not actually, like verified. But I think by and large, because of that core group, everything related to Corona every news then used to pass. Initially, we made mistakes, but then all the news used to go through that core group, which was kind of became a group of experts, तो उससे हमें फायदा ये हुआ कि हम जो टेक्निकल चीज थी, जब भी हमारे पास कोई आती थी, मिसाल के तौर के ऊपर इतनी मैं एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ कि ये भी मैंने कहा, ये क्लोरोक्वीन की एक वो आई, और आपको पता होगा कि इवन कराची में और पाकिस्तान में रश पड़ गया मेडिकल स्टोर्स के ऊपर कि जी दवा जो है वो रेसोचिन लोगों ने खरीदनी शुरू कर दी, और कि भाई खाना शुरू कर दो और ये कर दो. तो अब इसको एक्सप्लेन करना आम आदमी को आसान नहीं है. पहले तो हम खुद समझें इस चीज को, हम एक्सपर्ट्स तो हैं नहीं. तो उससे फायदा ये हुआ कि स्कोर ग्रुप के दे यूज्ड टू डिस्कस कॉन्स्टेंटली विद डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के साथ, और फिर वो उस स्क्रिप्ट को, जिसको हम कहते हैं कि डम डाउन करके उन स्क्रिप्ट्स को पेश करते थे, ताकि आम लोगों की समझ में आ सके, जो वो एक स्लाइटली टेक्निकल बात थी. मास्क का ये बहुत एक कॉमन चीज थी और बहुत आया, बल्कि अब तक है. अब तक लोग कह रहे हैं कि जी मैं मास्क पहन के नहीं निकलूंगा, आपको सांस में प्रॉब्लम आ जाती है, आपको ये हो जाता है. तो वो बहुत सारी चीजें थी. अच्छा, ओवर यूज ऑफ सैनिटाइजर्स भी एक इशू था कि भाई मतलब हर वक्त ही आप लगा रहे हैं तो आपकी स्किन और उसके ऊपर क्या फर्क पड़ जाएगा. लाइक कॉमन चीजें जो लोगों की थी. आपको जूते पहन के घर में आने में, इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल आम लोगों की चीजें हैं जिनको समझाने के लिए, तो बेयर विद मी. ये वो चीजें थी. देखिए, बड़ी जो चीजें थी उनको एक्सप्लेन करना, जो कि ज्यादा एजुकेटेड लॉट के लिए होता है, इट्स काइंड ऑफ इजी. एंड टू बी ऑनेस्ट, अनफॉर्चुनेटली वी actually found out, because we have a system of interactivity, और हमें feedback आता है लोगों से, कि some of the more educated ones, and sorry for using this word, we found out to be the dumbest. मतलब आप ये देखें कि जो लोग DHA और क्लिफ्टन और PCHS और यहाँ से हमें जो फीडबैक आता था, मतलब मैं अभी कराची की सिर्फ बात कर रहा हूँ, और मैं जनरली भी बात कर सकता हूँ इस्लामाबाद, लाहौर और जगहों की, ऐसे सवाल, ऐसी चीजें आ रही होती थी कि हम हैरान थे कि भाई आप तो आराम से जाकर अपने मोबाइल फोन और उस पर भी सर्च कर सकते हैं, फिर भी जो है वो लोगों की समझ में नहीं आ रहा था. फिर भी दे यूज्ड टू रेज क्वेश्चंस. आज तक हमें ये सवाल आ रहा है कि ये एक कंस्पिरेसी है, कोरोना कोई एग्जिस्ट नहीं करता. आज तक 3 महीने गुजर गए हैं, लोगों को अभी तक ये समझाने में हमें जो है वो मुश्किल होती है उसमें. सो आप देख लें, अभी ये खुला है, खैर उसकी इकोनॉमिक रीजंस भी होंगी कि क्या रश लगा हुआ है. इट्स बीन सो डिफिकल्ट. हम बिल्कुल गालियां खा रहे हैं कि हम अभी तक प्रोमोट कर रहे हैं इस चीज को कि जी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए.
we have been raising this issue about smart lockdown from day one. That smart lockdown is not possible. ASFA हो ही नहीं सकता unless you have done massive testing. आपकी massive testing हो, आपने प्रॉपर डेटा अवेलेबल हो, आपने उसकी प्लॉटिंग की हुई हो, जिसको जियो फेंसिंग आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, आपने उसके जरिए जो है वो उसकी प्लॉटिंग की हुई हो, उसके बाद आपको पता लगेगा कि भाई गुजरांवाला के इस इलाके में, कराची में कुरंगी के इस सेक्टर में और इस जगह पर जो है वो ज्यादा है, हम वहां ज्यादा लॉकडाउन करेंगे, किसी जगह पे कम करेंगे। जब तक आप मैसिव टेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। हमारे बहुत पुश करने के बाद, बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के बाद तो अब जाकर ये कोई 12-13 हजार टेस्ट पर डे के ऊपर आए हैं, वरना तो ये 5,000 से ऊपर नहीं जा रहे थे। तो यस, आई मीन डिफिकल्ट रहा है ये चीज। एक क्वेश्चन है हमारे पास, I think we can take that. It says following SOPs is a personal choice and responsibility, but what would you say about Supreme Court orders to open all markets and all? Being a journalist, I mean, obviously अब situation ये है कि अब scientific information को आपको कोर्ट के ऑर्डर से बैलेंस करना पड़ रहा है, तो आप क्या उसमें पोजीशन ले रहे हैं? I think that's what you were talking about when we SOPs फॉलो करना बिल्कुल पर्सनल चॉइस मैं समझता हूँ। as far as an organization is concerned, हमारे यहाँ कोई पर्सनल चॉइस हमने नहीं छोड़ी कि आपकी पर्सनल चॉइस है, ये ऑर्गेनाइजेशन की SOPs हैं। जो इनको फॉलो नहीं करेगा, हमने सिंपली उनसे कह दिया कि जी आप, जैसे मिसाल के तौर पे हम वी आर द ओनली मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जिसने 100% टेस्टिंग की है। अभी हमारा शायद पेशावर का वो रह गया है, बट वी आर बेसिकली इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग 100% टेस्टिंग ऑफ आवर स्टाफ, 100%। और उससे हमें ये अंदाजा हुआ कि किस एरिया में, किस जगह के ऊपर, एंड इट एक्चुअली बिकेम काइंड ऑफ अ सैंपल फॉर नॉट जस्ट फॉर अस, फॉर द इंडस्ट्री एज वेल। कि तो वो एक तो हमने ये किया। दूसरा, आपने जो बात की, तो SOPs जो है वो पर्सनल चॉइस ये नहीं है कि आपने मार्केट्स खोल दी और आपने लोगों को कह दिया। आप एक हुकूमत है, मुल्क में कोई रियासत है या नहीं है, जैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ करते हैं कि हर आदमी ने मास्क पहनना है। मैं आपसे ये इस वक्त बात कर रहा हूँ, मैंने ये मास्क उतारा हुआ है। हमारे ये पूरे, अगर मैं आपको दिखाऊं न्यूज रूम में, एवरी सिंगल पर्सन इज वेयरिंग अ मास्क, एवरी सिंगल पर्सन इज सिटिंग एटलीस्ट 3 फुट या 6 फुट के फासले के ऊपर। जो है ये कहूंगा कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं करना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत किया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट फ्रैंकली स्पीकिंग हैज नो बिजनेस इन इंटरफेयरिंग। वन, ये एग्जीक्यूटिव का फैसला है, उसको करना चाहिए। एंड 2, एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स। भाई आपको डॉक्टर, आपके मेरे दांत में दर्द होगा तो मैं डॉक्टर से कहूंगा कि ये दवा देनी है, और डॉक्टर मुझे बताएगा, मैं कहूंगा नहीं 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 नहीं, मैंने किसी जज से जाकर पूछना है, या माजरत के साथ किसी टीचर से पूछना है, या मैंने अपनी अम्मी से पूछना है। ये कैसा, मतलब किस तरह के हम मुल्क में रह रहे हैं? हैरानी होती है कभी कभी हमें देखते हुए माजरत के साथ। अजहर साहब, आपसे 100% मुत्तफिक हूँ आपने जो कहा, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट के, बट यू सी दिस difference of opinion has not been healthy. It has created confusion not only amongst the illiterate people, even amongst the literate people. पढ़े लिखे लोग भी अब कंफ्यूजन के शिकार हैं। अगर ये कहा जाए सबसे हाईएस्ट फोरम से कि पाकिस्तान में पेंडेमिक नहीं है, तो आप जो है उस पर चले जाते हैं कि ये तो वबा ही नहीं है, या इसकी डाउट पे चला जाता है कि वाकई क्या कोरोना पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। अगर हमारा मिनिस्टर ये कहता है कि जी एक्सीडेंट में इससे 4 गुना ज्यादा लोग मरते हैं, हमें क्या परेशानी है। मतलब इस तरह की चीजें जो हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ हमारे मुल्क में हो रही है। अब आज मैं डॉन अखबार में पढ़ रहा था कि आपके अखबार में भी था कि ट्रंप ने ये कहा कि जी मैं तो पिछले 2 हफ्ते से हाइड्रोक्लोरिक यूज कर रहा हूँ, क्लोरोक्विन यूज कर रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरोक्विन यूज कर रहा हूँ। हालांकि उसको FDA ने, जो उनके अपना इदारा है, उसने सख्ती से मना किया है कि जी इससे हार्ट अटैक हो सकता है और लोगों की डेथ हो सकती है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इस तरह की इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं तो फिर हमारे मुल्क में भी इसी तरह का कंफ्यूजन एग्जिस्ट करता है। मुख्तलिफ फोरम के ऊपर लोग मुख्तलिफ राय देते हैं। कुछ लोग तो इससे मुत्तफिक ही नहीं है कि कोरोना जो है एक वबा है, कुछ लोग इससे मुत्तफिक नहीं कि ये कोई वायरस है। फिर एक एज ए नेशन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बहुत बिलीव करते हैं।
हर चीज के पीछे किसी साजिश को ढूंढते हैं। तो किसी का कहना है ये अमेरिका की मुसलमानों के खिलाफ साजिश है या इसराइल की साजिश है। अब इन चीजों से जो कन्फ्यूजन पैदा किया, मेरा आपसे सवाल ये कि इस कन्फ्यूजन को, ये तो आपके भी इल्म में, मेरे भी इल्म में, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए खास तौर पर उन लोगों के जहन से जो कि बेचारे इतने तालीम याफ्ता नहीं है और इसका शिकार हो जाते हैं, या हम शायद नाकाम रहे उन लोगों को इस बात पर कायल करने पर कि ये एक खतरनाक बीमारी है। क्योंकि जो आज हम रश देख रहे हैं मार्केट में, ये इस बात का सबूत है कि हमारा मीडिया या हम डॉक्टर्स इसमें नाकाम रहे कि हम लोगों को इस बात पर कायल कर सकें कि जनाब ये एक खतरनाक बीमारी है और आप इससे बचें। जैसे तो मेरी राय, मेरा सवाल ये है कि क्या इसमें अब फ्यूचर कोई मीडिया रोल प्ले कर सकता है कि हम लोगों तक ये मैसेज ऐसी सूरत में पहुंचाएं कि वो ज्यादा उनके लिए एक्सेप्टेबल हो, और अब तक जो हम तरीका इस्तेमाल करते रहे क्या ये नाकाम हो गया? प्रोफेसर साहब, मेरा इसमें जाहिर है मैं इस पे तो नहीं कहूँगा कि कमेंट नहीं करूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप या उनकी तरह के लोग जो हैं वो काफ़ी मुल्कों में क़यादत में आ गए हैं। तो बहरहाल लोगों ने उनको इलेक्ट किया है। चाहे बोरिस जॉनसन डिड ऑलमोस्ट द सेम थिंग एंड ही इनिशियली डिसाइडेड कि वी आर गोइंग टू गो फॉर हर्ड इम्यूनिटी एंड देन लेटर जो है वो उनको सफ़र करना पड़ा बहुत ज़्यादा। और फिर हमारे भी आसपास जो है वो उसी एक माइंडसेट जो है वो तकरीबन ऐसा ही लगता है हुक्मरानों का। तो लेकिन जो आप कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि नाकाम शायद हम इतना नहीं हुए जितना हमारा सिस्टम जो है, हेल्थ केयर सिस्टम हमारा, और हमारे जो लीडर्स हैं, जिनको जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो इवन हमारे उसमें मैं इनको जो मौलवी हजरात हैं उनको भी शामिल करूंगा, बिकॉज उनका अपना एक इन्फ्लुएंस होता है। हमारे जो काउंसलर्स हैं और जो भी इलेक्टेड लोग होते हैं उनको भी मैं शामिल करूंगा। एंड ऑल्सो यू नो लाइक डॉक्टर्स, या हम, खैर डॉक्टर्स तो बहुत ज़्यादा बेचारे शुरू से पहले दिन से फंस गए इस काम में भी। लेकिन जनरली तो ये हुआ कि हमारा वो सिस्टम लगा हमें कि कितना वीक सिस्टम है, जो कि लगा कि बिल्कुल कोलैप्स कर गया। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग सिर्फ हमारा नहीं, वैसे ये पूरी दुनिया में ही हुआ है, और ये पूरी दुनिया में ही रिएक्शंस आ रहे हैं। लॉकडाउन के खिलाफ भी है और भी वो सारी चीज़ें। लेकिन क्योंकि जो ज़्यादा डेवलप्ड नेशंस हैं उनको आदत है SOPs को फॉलो करने की, उनको आदत है एक सिस्टम के अंदर चलने की। तो वहां पर अगर जो वायलेशंस हैं वो बहुत ही कम वायलेशंस हैं आपको नजर आएंगी। हम सोशल मीडिया पे सिर्फ वायलेशंस को देख लेते हैं, लेकिन आप ये देखेंगे उनकी 90% पॉपुलेशन जो है वो फॉलो कर रही है उस चीज को। तो वहां पर लोगों को आदत है, लोगों को क्यूज में खड़े होने की आदत है, लोगों को अपने अगर गाड़ी भी चला रहे हैं तो एक डिस्टेंस और उसको मेंटेन करने की वगैरह वगैरह। हम सब जानते हैं इस बात को। हमारे यहाँ ये सिस्टम था ही नहीं, है ही नहीं। लोगों को एक माजरत के साथ एक जैसे मादर पिदर आज़ादी हम समझते हैं, जो हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द होते हुए, हम खुद हिस्सा हैं उसका। जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, ट्रैफिक करते हुए, हम खुद सिग्नल तोड़ते हैं, हम जो है लाइन में नहीं लगते हैं। तो जब हमें आदत ही नहीं है सिस्टम्स के अंदर चलने की, तो जाहिर है कि जैसे, अब फिर ये कि ये भी सच्ची बात है कि जो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं तो उससे भी लोगों को एक तंग आ गए थे। कुछ घरों पे बैठ कर भी शायद तंग आ गए थे लोग, तो वो निकलना चाहते थे और वो निकले हैं। फिर ये कि मेरा ख्याल है इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है, जो आपने इनिशियली कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की, और हमारे यहाँ भी जो हमारे सेंट्रल लीडर्स थे, जब वो खुद ही इस तरह का बयान देंगे कि कोरोना से जो है वो तो लोगों को हो जाएगा, लेकिन डेथ रेट बहुत कम है, इतने लोग मर नहीं रहे। आप ये सोचें कि आई एम शेयरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई पर्सनली talk to some of the senior most people in the civil and military establishment and told them कि ये जो आप PTA के ऊपर के जरिए मोबाइल फोन्स के ऊपर एक मैसेज चला रहे हैं, आपको याद होगा इनिशियली मैसेज था कि कोरोना जानलेवा मर्ज नहीं है, ठीक है। मैंने पर्सनली जो है वो लोगों को कॉल किया और उनसे कहा कि खुदा का खौफ करें, आप क्या ये मैसेज जो है दे रहे हैं। एंड इट टुक देम प्रोफेसर साहब 2 वीक्स सीनियर मोस्ट लेवल के ऊपर बात करने के बाद कि देन दे चेंज द मैसेज कि कोरोना जानलेवा हो सकता है। अब आप अगर फोन पे देखें तो ये मैसेज जो है वो चेंज हो गया है।
एंड आई पर्सनली टॉक टू द सीनियर मोस्ट पीपल, 2 हफ्ते लगे उनको। तो आप जब मैसेज ही आवाम को ये दे रहे हैं कि भाई कोरोना जानलेवा नहीं है, तो जानलेवा अगर नहीं है तो भाई बीमारी तो ज़ाहिर हो जाती है। इसीलिए ये माइंडसेट आता है जो आपने कहा कि भाई एक्सीडेंट से इतने लोग मर जाते हैं। इसीलिए माइंडसेट है कि जी यहाँ पर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा है, माएँ जो हैं वो डिलीवरी के वक्त कितनी जो है वो यहाँ पर उनका इंतकाल हो जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। निमोनिया से इतने आप देख रहे होंगे, सबने पढ़ा होगा हम सब ने, कि ये कितनी चीज़ें सोशल मीडिया से उठा के हमारे फेडरल मिनिस्टर लेवल के लोग जो हैं वो इस चीज़ को प्रोपेगेट करते हैं कि यार निमोनिया से इतने मर जाते हैं, इससे इतने मर जाते हैं, तो क्या हम खामखाई में कह रहे हैं, अभी तो पाकिस्तान आदमी भी नहीं मरा है इसके अंदर। सो ये जब माइंडसेट आएगा तो जाहिर है वो कौम जो कि आपने जो सही कहा कि कंस्पिरेसी थ्योरीज पे बिलीव करती है, जो कहती है कि जी एज ली कुआन यू वंस सेड इन पाकिस्तान के जी आप रियासत क्या खत्म हो गई है, बिल्कुल वो नहीं कर पा रही, तो सारी की सारी जिम्मेदारी अब आप डॉक्टर्स और हम मीडिया के ऊपर यार डाल देते हैं कि भाई हम ही लोगों को कितनी मर्तबा बताएं इस चीज को। हम गालियां खा रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे देखें, लिटरली हम गालियां खा रहे हैं कि भाई आपने ये मस्जिदों के ऊपर कितनी कैंपेन चला दी कि भाई इस तरह से करें, अब आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, और हम जो है वो कहाँ तक ये खाएंगे इसको। तो but we are trying our best, but yes, we are dealing with a very difficult situation. Achha, we have a question. It is about how you are balancing the coverage of urban issues with rural issues in this time. और आप उस बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि obviously rural areas के issues और आजकल तो इतनी limitations हैं, तो it is being compromised. So what would you comment on that? Asfa, we have as a media we have lacked in covering the rural area per se. As such हमारा आप देखें कि generally कम है. It's unfortunate, लेकिन ये कि rural areas की coverage जो है वो वैसे भी थोड़ी कम ही रहती है. इस दौरान हमने cover तो किया है generally on television channels या अखबारात के अंदर, but it's not satisfactory. It's not exactly कि हम rural areas में जो सूरत हाल है उसको, I would say I don't have the stats right now in front of me, but हमने जितना इसको जो भी डेली बेसिस के ऊपर हमारे पास आ रहे होते हैं और हम पढ़ रहे होते हैं, तो अभी भी ज़्यादा जो केसेस हैं वो अर्बन एरिया से ही आ रहे हैं as compared to rural areas. I don't know the reason, I'm not an expert, लेकिन ये कि generally ज़्यादा जो है वो लाहौर, कराची, अगर आप देखें पेशावर, यहाँ पर आपको जो है वो नज़र आते हैं. Now there could be 2 reasons. One, कि टेस्टिंग कम है तो आपको नज़र नहीं आ रहे, बट देन डेथ रेट भी नहीं है वहाँ पर. अगर या तो ये होता कि भाई कोई लोग बहुत ज़्यादा मर रहे होते हैं वहाँ पर, तो वो भी नहीं है. लेकिन टेस्टिंग डेफिनेटली जो है वो इन्होंने अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा की है, वहाँ पर नहीं की है. सेकेंडली अब जाकर इन्होंने ये एंटीबॉडी टेस्ट भी जो आया है, पहले ये गेट्स वालों ने वहाँ से इंपोर्ट किया था, उन्होंने काफ़ी किया है, और अब एक ज़्यादा वेरीफाइड जो है वो रॉश फार्मा ने जो अपना किया है, उन्होंने शौकत खानम को भी कुछ काफ़ी डोनेट किया और वो भी कर रहे हैं वैसे. तो वो मेरा ख्याल है कि वो ज़ाहिर सस्ता भी है, और क्योंकि ये FDA और इसका यूरोपियन यूनियन वहाँ का अप्रूव टेस्ट है जो रोशन का भी आया हुआ है. तो आई थिंक ये है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को थोड़ा सा करना चाहिए. आप मास स्केल के ऊपर इस टेस्ट को करके कम से कम एक वो कर सकते हैं. दैट इज़ व्हाट वी थिंक. और वो जब तक रूरल एरियाज़ में नहीं होगी मास टेस्टिंग, तो आपको एक्चुअल पिक्चर जो है वो नहीं आएगी. बट इफ योर एज पर योर ओरिजिनल क्वेश्चन के भाई रूरल एरियाज़ की कवरेज वाइज वी हैव बीन कवरिंग, ज़ाहिर एज जियो मैं कह सकता हूँ कि शायद हमारी रिलेटिवली ज़्यादा है. वी आर अ बिगर चैनल, वी हैव बेटर रिसोर्सेज एंड बिगर रिसोर्सेज. लेकिन ये कि बाय एंड लार्ज ज़ाहिर रूरल एरियाज़ और जनरली ऑन मीडिया इज नेग्लेक्टेड एरिया. अच्छा, there's a question which I'm going to add my own question to it. पेमरा ने क्या इस दौरान कोई किस तरह का रोल प्ले किया, तो उसके बारे में बताइए. दूसरे ये लुबना जरार नकवी wants to know कि do you think censorship has increased during the reporting of coronavirus?
की बात कीजिए। अब पेम्ब्रा का जो रोल है वो कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत शुरू में उनका ज़्यादा था कि जी आप लोग ये स्केयर फैला रहे हैं, आप जो है वो इतना ज़्यादा, जो जनरली जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रोच थी कि जी आप इतना ज़्यादा नहीं है, आप क्यों घबरा रहे हैं, लोग घबरा जाएंगे, लोग ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उसकी वजह से प्रेशर्स जो हैं वो ज़्यादा थे। एंड वंस दे रियलाइज्ड कि एक्चुअली ये एक सीरियस चीज़ है और ये टाइम लगा गवर्नमेंट को वो करने में, तो वंस दे रियलाइज तो फिर उसके बाद वो उस टाइप के प्रेशर्स जो है वो खत्म हो गए कि जी आप बहुत ज़्यादा ना करें। एंड देन जो एक नॉर्मल एडवाइजेस होती हैं कि भाई ये कर लें, ये कर लें, इस तरह की चीज़ कर लें, सो वो नहीं था। सेंसरशिप की जो चीज़ है वो नॉट एग्जैक्टली, आई मीन कि कोई कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा था प्रेशर। यस, जब हम एक्सपोजेस थोड़े कर रहे थे, हम ये प्रेशर डालते थे कि टेस्टिंग नहीं हो रही, या हमारी इस टाइप की रिपोर्ट्स होती थी कि भाई उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जा रहा, और एक्चुअली जो है वो फैक्ट्स जो है वो छुपाए जा रहे हैं। स्पेशली हमारी एक कुछ रिपोर्ट्स थी पंजाब गवर्नमेंट और उसमें, जहाँ पर हमने डेटा, उनके जो इंटरनल डेटा था जो उन्होंने पब्लिकली शेयर नहीं किया था, हमने उसको सामने लेकर आए और हमने बताया कि ये डेटा सही नहीं है, आप नहीं शेयर कर रहे हैं इसको। तो इस तरह की चीज़ें जिनके ऊपर प्रेशर्स जो है वो ज़्यादा आते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त गवर्नमेंट का एक राह है कि देखें, दुनिया में जब इस तरह की चीज़ होती है तो आप मैसिव गवर्नमेंट अवेयरनेस कैंपेन्स चलाती हैं, और अगर आप देखें कि कोई आपको टेलीविजन जो टेलीविजन चैनल्स खुद कर रहे हैं या अखबारात खुद कर रहे हैं, वो तो आपको चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन इसमें मैसिव एड्स या क्या नाम है, अवेयरनेस कैंपेन्स चलती हैं लोगों को वो करने के लिए। आप चाहे वो साइन बोर्ड्स हो, बिल बोर्ड्स हो, टेलीविजन हो, डिजिटल के ऊपर हो, आपको लोगों को, आम लोगों, टेलीफोन के ऊपर आपने एक बस मैसेज पीटीए से बनाकर डाल दिया, तो वो जो कैंपेन्स हैं वो ऑलमोस्ट नजर नहीं आई इस उसमें। सो यस, आई मीन लाइक देयर हैजंट बीन एज सच बहुत कोई सेंसरशिप रही हो, इसके ऊपर प्रेशर जरूर है, इनिशियली ज्यादा रहे, बाद में जो है वो कम हो गए थे व्हेन दे रियलाइज कि हाँ जी हम सच बोल रहे हैं, आप गलत कह रहे थे। आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। आपसे अजहर साहब ये पूछना चाहूँगा कि इस सारे सिनेरियो में जो हमारे यहाँ कोविड की वजह से पिछले 3 माह में डेवलप हुआ है, आपने क्या महसूस किया है कि जो मास मीडिया है एज सच आफ्टर इट इज ऑल ओवर, आप समझते हैं कि मास मीडिया विल बी इम्प्रूव ऑन इट्स ओन परफॉर्मेंस, और या मास मीडिया विल सफर बिकॉज ऑफ ऑल व्हाट हैज हैपेंड? इसके ऊपर क्या इसका कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं मास मीडिया के ऊपर आएगा इस कोविड के जब इस सिनेरियो वंस वी पास थ्रू? एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरा मेरा सवाल ये कि जिस तरीके से लैक लस्टर रिस्पॉन्स गवर्नमेंट दे रही है डॉक्टरों की हिदायत पर कि जी खोलते जा रहे हैं, क्या आपके जहन में ये स्वीडन वाला मॉडल क्या है कि गवर्नमेंट के जहन में कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए विदाउट मेंशनिंग की हो जाए एंड कि मुल्क में डेवलप हो जाए? तो ये दो चीज़ें मैं आपसे चाहूँगा, आपसे बताइए। प्रोफेसर साहब, जो पहली आपकी सवाल, आई थिंक सिर्फ मीडिया ही नहीं, हर चीज़ ही चेंज हो जाएगी। हमारा जिंदा रहने का, हमारा काम करने का जो एक तरीक़ेकार है, शायद वो भी तब्दील हो जाए पूरी दुनिया में। हर तरह की इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो इसका फ़र्क पड़ेगा, इंक्लूडिंग ज़ाहिर है कि मीडिया। आई थिंक अगर आप देखें कि एयरलाइन इंडस्ट्री, तो मैं समझता ही नहीं हूँ कि अब आगे किस तरह से उठ पाएगी। जो टेलीविज़न, स्पेशली न्यूज़पेपर्स के ऊपर तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया है ऑलरेडी। नॉट जस्ट के जब एडवर्टाइजिंग बिल्कुल ही ख़त्म ऑलमोस्ट हो गई, ज़ाहिर है जब इंडस्ट्री नहीं चल रही थी तो एडवर्टाइजिंग कहाँ से आएगी, गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग बहुत है ही कम, प्लस कॉस्ट उनकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, प्लस ये जो एक है कि जी अखबार घर के ऊपर उनकी सब्सक्रिप्शंस बहुत ज़्यादा कैंसिल हुई हैं बिकॉज ऑफ दिस फेयर कि जी कोरोना आ जाएगा अखबार के ज़रिए और ये सारा। तो जो अखबार प्रिंट इंडस्ट्री है उसको तो बहुत मेजर होगा। आई कैन एक्चुअली सी अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स मे बी शट डाउन,
और there may be major retrenchments, salary cuts. Already salary cuts और ये सब चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, और लोगों की नौकरियों का भी इशू आएगा, बहुत सीरियस इशू आएगा यहाँ पर, इवन सो मच सो के बंद होंगे जो अखबारात हैं। चैनल्स के अंदर भी यही चीज़ आएगी, चैनल्स के रेवेन्यूज जनरली डाउन हुए हैं। आई थिंक पूरी रीमॉडलिंग करनी पड़ेगी टेलीविज़न को, ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान में सरवाइव करना है उनको, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट्स, इवन इन टर्म्स ऑफ जो उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स थी, जो ट्रेडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स रही हैं, उसके अलावा उनको देखना पड़ेगा कि उनकी क्या रेवेन्यू स्ट्रीम्स होंगी या हो सकती हैं। तो ये आने वाले दिनों में फिर ये कि जाहिर है कि अगर मैं हूँ, अगर मालिक हूँ, तो मैं भी ये देखूंगा कि कोरोना के बाद मैं देखता हूँ कि मैं अपने 50% स्टाफ से काम करा सकता हूँ, 50% जो है वो घर से काम कर रहे हैं, तो मुझको उनको वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देने की क्या ज़रूरत है जो कि वो ऑफिस में आए काम करें, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत ही चेंज सिनारियो है और एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर काम करेगा। फिर वर्क स्पेस जो है बहुत कम रह जाएगी। जाहिर है कि हम वर्चुअल एक वर्ल्ड में चले गए हैं और कर रहे हैं हम जिस तरह से, वरना तो मैं शायद आपकी यूनिवर्सिटी में बैठा होता अगर आप इनवाइट करते और हम बात कर रहे होते, बट हम तकरीबन कम्युनिकेट तो कर ही रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी बदल जाएगी। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम एक DSNG भेजते थे, अभी भी भेजते हैं, लेकिन अब बहुत आराम से जो है वो स्काइप के ऊपर भी एक्सेप्टेबल है कि लोग आ जाते हैं और वो हमसे एक्सपर्ट जो है वो बात कर लेते हैं, या पॉलिटिशियंस आ जाते हैं। तो उससे पूरी आपकी जो सैटेलाइट की यूजेज है वो कम होगी, आपकी DSNG वैन्स की ज़रूरत कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी आने वाले दिनों में। तो जाहिर है कि फिर वो स्टाफ की ज़रूरत भी जो है वो आपको नहीं रह जाएगी। फिर आपको उतने कैमरामैन भी नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यस, वर्किंग टेलीविज़न के अंदर स्पेशली जो है वो बहुत फ़र्क पड़ेगा आने वाले दिनों में। और साथ साथ ये कि अखबारात तो बहुत ही सीरियस जो है वो इशू आएगा अखबारात को। आई वुड बी वेरी सरप्राइज कि कितने अखबारात जो है वो सरवाइव कर पाते हैं इसके अंदर। अब एक लास्ट चीज़ मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था इसमें कि जो प्रोफेसर साहब ने शुरू में भी कहा था कि लोगों की आदत भी बढ़ गई है, घर पे जब बैठे हैं और ये कर रहे हैं, तो वो अखबार के बजाय डिजिटल पे और जाकर और देखने का वैसे ही एक तो बढ़ गया था, और ज़्यादा हो गया है कि seeking information, trying to get more information, and getting used to not having a newspaper in the house and actually going on your phone or on your laptop or iPads और उसके ऊपर जाकर information। तो फिर अब लोगों कहेंगे कि यार हमें अखबार की जो है वो ज़रूरत क्या है। तो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री जो है वो आने वाला ये बहुत ही ज़्यादा टफ साल है उनके लिए। अच्छा, आई थिंक विल टेक दिस क्वेश्चन ऑल्सो। एक तो ये ज़ैनब रज़ा ने क्वेश्चन किया है, और ये कोई एनोनिमस हमारे अटेंडी हैं, खुफिया तौर पे बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं। What, not sure this relates to the discussion now. It would be interesting to know how transparency and objectivity is being ensured by news channels to verify the figures. Like there's a huge mistrust in terms of whether all numbers reported daily are actually due to corona, and ये इस बारे में मतलब आप थोड़ा अपना मैकेनिज्म बता दें। because आसफा देखें, जो नंबर्स हैं, मैं कहूँगा 90% हम रिलाय करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, बिकॉज नो मीडिया हाउस हैज़ द रिसोर्सेस कि वो इसको किसी और तरीके से कर सकें। द ओनली वे हम उसके अलावा करते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे हॉस्पिटल्स में कॉन्टैक्ट्स हैं, या जैसे मुल्तान है तो एक हॉस्पिटल, मेन हॉस्पिटल उनका नश्तर मेडिकल है, तो वो ईजियर है। कराची में चलें आपके जो 2-3 जगह हैं, तो वहाँ से आपके कॉन्टैक्ट्स हैं और हमारे रिपोर्टर्स। तो अगर कोई ऐसी होती है जो कुछ मैच नहीं कर रही होती फिगर्स और ये, तो वो भी हम गवर्नमेंट से ही कहते हैं कि जी आप हमें ये बताएं कि हमारे पास, मिसाल दे रहा हूँ आपसे कि अगर आगा खान से हमें, या इंडस हॉस्पिटल से, या SIUT में भी वो है, तो उनसे हम पूछें और वो कहें कि हमारे पास 200 लोग हैं इस वक्त या 100 लोग हैं, और गवर्नमेंट कह रही हो कि नहीं जी हम 50 हैं, तो वो हम उनको एक काउंटर चेक कर सकते हैं, और गवर्नमेंट भी अपने कभी कभी फिगर्स जो है वो ठीक कर लेती है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में
कोई जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब में वो कहीं छुपा रहे थे फिगर्स, तो हमने उनको बताया कि जी आप ये क्यों नहीं बता रहे। इस हद तक हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा किसी के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो गवर्नमेंट के फिगर्स को जो है वो जाकर कहे कि भाई ऑन अ डेली बेसिस। तो वो जो हमें बता रहे हैं कि हमने इतने टेस्ट किए, तो हम डेली बेसिस के ऊपर, या आपके इतने लोग वेंट्स के ऊपर हैं, तो यस आफ्टर एवरी 2-3 days वी डू चेक। दो चीजें हमारी जरूर होती हैं, एक क्रिटिकल पेशेंट्स की, पीपल हु आर ऑन वेंट एंड क्रिटिकल हु आर इन आईसीयूज, ये हम जरूर चेक करते हैं डिफरेंट जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं उनसे, और उनको मैच करते हैं गवर्नमेंट के नंबर से। और दूसरा जो डेथ्स हैं कि जैसे ईदी के अंदर और डिफरेंट जगहों पे जो अगर आ रही हैं, उनको हम चेक करते हैं। और वो कि अब हुआ, ये भी हमने बड़ी कैंपेन चलाई कि भाई जो भी डेथ्स हो रही है उनको कोरोना टेस्ट तो करें। तो आपको क्या पता कि ये हो सकता है किसी और वजह से हुआ हो, लेकिन अगर ये कोरोना है का थे पेशेंट, तो उसके पीछे एक पूरी की पूरी आपको एक वो मिल जाती है लाइन के भाई ये किस फैमिली से थे, कहाँ से थे, कहाँ किन लोगों से मिले। तो आपको उनको जाकर टेस्ट करना चाहिए सबको, चाहे हो सकता है उनकी डेथ एक्सीडेंट में मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता हो गई हो किसी की, लेकिन अगर आप टेस्ट करें और वो कोरोना पॉजिटिव आते हैं, तो आपको फिर उनकी पूरी फैमिली को देखना चाहिए, आपको उस मोहल्ले में देखना चाहिए, या जिस ऑफिस में वो काम कर रहे थे वहां इन्फॉर्म करना चाहिए। सो आई थिंक इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट, जिसके बाद अब थोड़ा बहुत ये सिलसिला शुरू हुआ है, बट अभी भी उतना नहीं है। I think we're going to end our discussion now, and I'm going to thank Mr. Azhar Abbas and our Honorable Vice Chancellor, Professor Tariq Rafi, for being part of the discussion. And we're going to thank Mr. Kamal Siddiqui and Mr. Qasim Moini, who were on standby and trying to log into this meeting, but kuch technical problems की वजह से वो शरीक नहीं हो सके. Hopefully we can have a very good discussion with them sometime later soon. Thank you very much for everyone. Thank you very much everyone for joining, and खुदा हाफिज़. बहुत शुक्रिया आपका भी, और प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका.